پاکستان کی شاندار سفارتی کامیابیوں کا سلسلہ جاری۔ امریکہ کے ایران کے خلاف پروجیکٹ فریڈم روکنے کا اعلان۔ پاکستان اور دیگر ملکوں کی درخواست پر آبنۂ ہرمز سے بحری جہازوں کی نقل و حرکت ممکن بنانے کے لیے ایران کے خلاف کارروائی عارضی طور پر روکنے کا فیصلہ۔ آبنۂ ہرمز میں ناکہ بندی پوری قوت کے ساتھ جاری رہے گی۔ ایران کے نمائندوں کے ساتھ حتمی معاہدے کے لیے بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ پیش رفت آگے بڑھانے کے لیے پروجیکٹ فریڈم مختصر مدت کے لیے روک رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر بیان۔ ایران کے خلاف آپریشن ایپک فیوری مکمل۔ آپریشن کے مقاصد حاصل کر لیے۔ جاری تصادم کے باعث آبنائے ہرمز میں 10 سویلین سیلر ہلاک ہوئے۔ امریکی فورسز کے لیے خطرہ بننے والے ڈرون اور بوٹس کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ایران کو حقیقت تسلیم کر کے مذاکرات کی میز پر آنا چاہیے۔ جیرڈ کوشنر اور وٹکوف مذاکرات پر کام کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس۔ امریکہ کی جانب سے پروجیکٹ فریڈم روکنے کے اعلان کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی۔ عالمی منڈی میں برنٹ خام تیل کی قیمت $108 فی بیرل کی سطح پر آ گئی۔ UAE تیل $106، WTI $100.6 فی بیرل میں فروخت ہو رہا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی دوسرا ہمیں مغلوب یا مجبور نہیں کر سکتا۔ عراقی وزیر اعظم سے فون پر کہا کہ وہ امریکہ کو طاقت کے استعمال کی دھمکیاں واپس لینے کا مشورہ دیں۔ اخلاق کے بغیر طاقت کھوکھلی ہے۔ سیاست کو طاقت تک محدود کرنے کے نتیجے میں آج دنیا میں افراتفری، جبر و ناانصافی ہے۔ امریکہ کی جانب سے ایران سے ہتھیار ڈالنے کے مطالبے پر ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا ایکس پر بیان۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی دورہ چین پر بیجنگ پہنچ گئے۔ بیجنگ میں چینی ہم منصب وانگ جی سے ملاقات۔ خطے کی تازہ صورتحال، علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت سمیت دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ ایرانی وزیر خارجہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ چین سے ایک ہفتہ قبل چین پہنچے ہیں۔ ایران کی متحدہ عرب امارات پر میزائل یا ڈرون حملے کی تردید۔ ایرانی فوج نے متحدہ عرب امارات پر کوئی میزائل یا ڈرون حملہ نہیں کیا۔ امارات سے ایران کے خلاف کارروائی کی گئی تو سخت جواب دیں گے۔ ترجمان ایرانی افواج۔ UAE کا امریکہ اور اسرائیل سے تعاون ناقابل قبول ہے۔ ایران مخالف اقدامات پر بھرپور رد عمل دیا جائے گا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ۔ امریکی ڈیموکریٹس ارکان کا وزیر خارجہ مارکو روبیو کو خط۔ اسرائیل کے جوہری ہتھیاروں پر موقف واضح کرنے کا مطالبہ۔ اسرائیل کے جوہری ہتھیاروں پر جاری خاموشی اور ابہام دور کیا جائے۔ اسرائیل کے ساتھ عسکری تعلق اور جوہری ہتھیاروں پر خاموشی غیر شفاف پالیسی ہے۔ موجودہ انتظامیہ نے جوہری توازن اور جنگی معلومات فراہم نہیں کی۔ جوہری توازن اور کسی بھی ممکنہ جنگی خطرے سے متعلق مکمل معلومات دی جائے۔ کانگریس ارکان کے خط کا متن۔ وفاقی وزیر خزانہ کا توانائی کے متبادل ذرائع کی جانب فوری منتقلی اور خود انحصاری پر زور۔ نوجوانوں کو سرمایہ کاری کی طرف لانا ترجیح قرار۔ نئی نسل کو سرمایہ کی منڈی کا حصہ بنانا ہوگا۔ معاشی ترقی کے لیے کیپٹل مارکیٹ کا کردار نہایت اہم ہے۔ چیلنجز کے باوجود پاکستان سٹاک مارکیٹ مستحکم ہے۔ خطے میں کشیدگی ختم کرانے کے لیے ہماری قیادت خطے میں متحرک ہے۔ ملکی معاشی ترقی میں نجی شعبے کی شمولیت ہماری اولین ترجیح۔ سورج، ہوا اور پن بجلی کے ذریعے توانائی کا حصول جاری ہے۔ NFC میں مشاورت سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب کا کیپٹل مارکیٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کی تقریب سے خطاب۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان کی ڈپٹی امریکی نمائندہ تجارت رک سویٹزر سے ورچوئل ملاقات۔ پاک امریکہ تجارتی تعاون بڑھانے پر بات چیت۔ دو طرفہ تجارت کے فروغ اور متوازن تجارتی معاہدے پر گفتگو۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ تجارت بڑھانے اور نئے شعبوں میں تعاون کا خواہاں۔ باہمی فائدہ مند اور مستقبل پر مبنی تجارتی فریم ورک پر اتفاق۔ دونوں ممالک کے درمیان تکنیکی سطح پر مذاکرات جاری۔ چند امور پر پیش رفت باقی ہے۔ باہمی بنیادوں پر تجارتی فریم ورک سے پائیدار معاشی تعاون کو فروغ ملے گا۔ سیکریٹری تجارت۔ مارکہ حق پاکستان کی فیصلہ کن عسکری برتری اور قومی اتحاد کا ناقابل تردید ثبوت ہے۔ مارکہ حق میں کامیابی بھارت کو واضح پیغام دیتی ہے کہ پاکستان اپنے دفاع میں مکمل طور پر مضبوط اور متحد ہے۔ بری، بحری اور فضائی افواج کی صلاحیت دشمن کے اندازوں سے کہیں زیادہ مؤثر اور مربوط ہے۔ پوری قوم بنیان و مرصوص کی طرح اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستانی افواج نے دشمن کی جارحیت کا بھرپور جواب دیا، جس پر وہ سفید جھنڈا لہرانے پر مجبور ہو گیا۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف۔
मार्के हक कौमी इत्तेहाद, इज्तिमाई अज़्म और खुद मुख्तारी के हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अक्कास। अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के मद्दे मुकाबिल बुनियाद मरसूस की मानद यकजा। मार्के हक अवाम, हुकूमत और अफवाज के दरमियान हम आहंगी की अलामत। कौमी सतह पर मार्के हक की याद मनाना भारतीय मुतकब्बिराना सियासी सोच के लिए वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद, मजबूत और हर लिहाज से मुकम्मल तैयार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। भारत की इबरतनाक शिकस्त का 1 साल मुकम्मल। मार्का हक की मुनासबत से तकरीब का प्रोमो जारी। तो याद रखें कि उन्वान से वलवला अंगेज प्रोमो 10 मई को पाकिस्तान मोनूमेंट पर कौमी बयान मरसूस तकरीब के तनाजुर में जारी किया गया। Pakistan responded with a relentless, a massive barrage of missiles and rockets. 7 brand beautiful planes were shot down. भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते। हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। मार्के हक की कामयाबी को 1 साल मुकम्मल। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियों के इनकाद। पाक फौज को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश। अवाम का रैली में शिरकत के लिए यकजहती और कौमी जज्बे का मुजाहरा। रैली में मुख्तलिफ महकमों के अफराद, तलबा, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान और अवाम की बड़ी तादाद की शिरकत। हम बहैसियत कौम अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं और मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। मुकर्ररीन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सेनेट का इजलास 7 मई को तलब करने की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने कौमी असेंबली का इजलास 11 मई को तलब करने की भी मंजूरी दी। मौसमियाती तब्दीली असरे हाजिर का सबसे बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली की वजह से बेपनाह नुकसानात उठा चुका है। पाकिस्तान का शुमार मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक में होता है। सैलाबों ने जानी नुकसान के साथ लोगों के लिए मुआशी मसाइल भी पैदा किए। फ़ज़ाई आलूदगी शहरियों, ख़ुसूसन बच्चों की सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है। मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए इज्तिमाई इक़दाम दरकार हैं। माहौलियाती नुकसानात का इज़ाला आलमी जिम्मेदारी है। मौसमियाती तब्दीली दुनिया का एक संगीन और संजीदा मसला है। वफाकी वज़ीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का ब्रीथ कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से अराकीन सूबाई असेंबली की मुलाकात। सूबे भर में जारी तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। अराकीन असेंबली का सड़कों और गलियों की तामीर और तोसी, ड्रेनेज और साफ पानी की फराहमी और मिसाली गाँव प्रोजेक्ट्स पर वज़ीर आला को खिराज तहसीन। 3000 से ज़ायद मराकज़ सेहत स्टेट ऑफ दी आर्ट हेल्थ क्लिनिक्स में बदलने से हेल्थ कल्चर यकसर तब्दील हो चुका। हर जिले में केथ लैब प्रोजेक्ट और स्टॉक मैनेजमेंट सेंटर के क़याम से अमरीकी अमराज दिल और फॉलिज के मरीजों को फौरी रिलीफ फराहम किया जा रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज। पाक फौज की पेशेवराना महारत की आलमी सतह पर पजीराई। ऑस्ट्रेलिया के रॉयल मिलिट्री कॉलेज में पाकिस्तानी कैडेट सरदार इरसाम अब्बास की शानदार कामयाबी। इरसाम अब्बास बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर ओवरऑल बेस्ट फॉरेन मिलिट्री कैडेट करार। इरसाम को इस एजाज से 5 मई 2026 को ऑस्ट्रेलिया में मुनक़िदा पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब में नवाजा गया। इरसाम अब्बास ऑस्ट्रेलिया में बेस्ट फॉरेन मिलिट्री कैडेट का एजाज हासिल करने वाले 14वें पाकिस्तानी कैडेट बन गए। मार्के हक का 1 साल मुकम्मल। मुल्क भर में जश्न फतह की पुरवकार तकारीब का सिलसिला जारी। पाक फौज और इस्लामिया कॉलेज पेशावर के माबैन दोस्ताना क्रिकेट मैच का इनेकाद। असातिज़ा और तलबा ने खिलाड़ियों को खूब दाद दी। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से ग्राउंड गूंज उठा। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमान खुसूसी की जानिब से नुमाया खिलाड़ियों में इनामात और ट्रॉफीज तकसीम की गई। कराची में पाकिस्तान जिम्बाब्वे विमेंस क्रिकेट सीरीज दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। सीरीज में कौमी टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। पहले वनडे में पाकिस्तान की जिम्बाब्वे को 168 रन से हराकर रन के एतबार से वनडे क्रिकेट में दूसरी बड़ी फतह।
पाकिस्तानी फाइटर शाहजेब रिन की कराटे कॉम्बैट लीग में एक और बड़ी कामयाबी। अमेरिका में लीग के 61वें एडिशन में यूएफसी फाइटर आंदेवेल को दूसरे ही राउंड में नॉकआउट कर दिया। शाहजेब रिन कराटे लीग की 9 फाइट्स में से 5 में मुखालिफ को टेक्निकल नॉकआउट कर चुके हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं सलमा कौसर। खेलों की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ माहम वारिस और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पाकिस्तान की शानदार सिफारती कामयाबियों का सिलसिला जारी है। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान की दरखास्त पर आबनाए हुर्मुज़ में फौजी ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम को आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान कर दिया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान और दीगर मुल्कों की दरखास्त और ईरान के नुमाइंदों के साथ अतमी मुआहदे के लिए बड़ी पेशरफ्त के पेश नज़र प्रोजेक्ट फ्रीडम को आर्जी तौर पर रोक रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमरीका और ईरान ने दो तरफा तौर पर इस पर इत्तफाक किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत आबनाए हुर्मुज़ से बहरी जहाज़ों की नकलो हरकत मुमकिन बनाई जाना था। सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीका प्रोजेक्ट फ्रीडम मुख्तसर मुद्दत के लिए रोक रहा है और इस दौरान अमरीका देखेगा कि ईरान के साथ कोई मुआहिदा हतमी शक्ल इख्तियार करता है या नहीं। अमरीकी सदर ने कहा कि इस दौरान आबनाए हुर्मुज़ में नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल रहेगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि एपिक फ्यूरी के मकासद हासिल करके ऑपरेशन को मुकम्मल कर लिया गया है। व्हाइट हाउस में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमरीकी फोर्सेस के लिए खतरा बनने वाले ड्रोन और बोट्स को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रखेंगे। उन्होंने कहा जारी तसादम के बायस आबनाए हुर्मुज़ में 10 सिविलियन सेलर हलाक हुए। मार्को रूबियो ने कहा अमरीका आबनाए हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ों की हिफाजत बढ़ाने के लिए तैनातियां कर रहा है। ईरान को हकीकत तस्लीम करके मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। उन्होंने वाज़ेह किया कि जेरेड कुशनर और विटकॉफ मुज़ाकरात पर काम कर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा सदर ट्रंप चाहते हैं ईरानी अवाम के पास रजीम के खिलाफ लड़ने की सलाहियत हो। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है हम मुसलमान सिर्फ अल्लाह ताला के सामने सर झुकाते हैं, अल्लाह के सिवा कोई दूसरा हमें मगलूब या मजबूर नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि अमरीका की जानिब से ईरान से हथियार डालने के मुतालबे पर एक्स पर उन्होंने पैगाम जारी किया कि फ़ोन पर इराक़ी वज़ीर आज़म से कहा है कि वो अमरीका को ताकत के इस्तेमाल की धमकियाँ वापस लेने का मशवरा दें। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि इखलाक के बगैर ताकत खोखली है। इराक़ी वज़ीर आज़म अली अलज़ीदी ने ईरानी सदर को अमरीका के साथ तनाज़ात के हल के लिए सालसी की पेशकश की है। इराक़ी हुकूमत ने जारी बयान के मुताबिक नामजद वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू में जोर दिया कि इराक़ सिफारती रास्ते अपनाने और तनाज़ात के हल की हिमायत करता है। गुफ्तगू में दोनों ममालिक की तरफ ताउन और उन्हें मज़ीद मुस्तहकम करने के तरीकों का जायज़ा लिया गया। फ़रीक़ैन ने मुस्तक़बिल करीब में वफ़ूद के तबादलों और दौरों पर भी इत्तफ़ाक़ किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची दौरा चीन पर बीजिंग पहुँच गए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने बीजिंग में चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दोनों के दरमियान इलाकाई और आलमी पेशरफ्त और दो तरफा ताल्लुकात पर भी गुफ्तगू हुई। वाज़ेह रहे कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा चीनी हुकाम की दावत पर चीन का दौरा कर रहे हैं। अब्बास इराक़ची अमरीकी सदर ट्रंप के दौरे चीन से एक हफ्ता कबल चीन पहुंचे हैं। ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात पर मिसाइल या ड्रोन हमले की तरदीद करते हुए कहा कि ईरानी फौज ने मुत्तहिदा अरब अमारात पर कोई मिसाइल या ड्रोन हमले नहीं किए। तर्जमान ईरानी वजारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि यूएई का अमरीका और इसराइल से ताउन नाकाबिल कबूल है। दिफाई कार्रवाई सिर्फ अमरीका के खिलाफ थी। अबू ज़ैबी में फौजी अड्डे ईरान के खिलाफ इकदाम तस्वर किया जा रहा है। ईरान मुखालिफ इकदाम पर भरपूर रद्दमल दिया जाएगा। ईरान के मरकजी खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जमान ने भी वाज़ेह किया कि ईरान की मुसल्लह अफ़वाज ने मुत्तहिदा अरब अमारात पर कोई मिसाइल या ड्रोन हमले नहीं किए। अमारात की वजारत दिफा की रिपोर्ट सरासर गलत और बेबुनियाद है। अमारात ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई की गई तो उसका सख्त जवाब देंगे। आपका मुल्क अमरीकियों और सहूनियों के लिए महफूज ठिकाना न बने, ऐसा हुआ तो उम्मत मुसलमा के साथ गद्दारी होगी। तर्जमान ने कहा कि अमरीका और इसराइल इस्लाम के दुश्मन हैं और खत्ते में अदम इस्तेहकाम का सबब बनते हैं। प्रोपोगेंडा, झूठे इल्ज़ामात और ख़ुद को मजलूम जाहिर करना मसले का हल नहीं। माजी में जो भी ज़ब्त व तहम्मुल दिखाया गया वो अमाराती मुसलमानों की सलामती की वजह से था। अमरीकी डेमोक्रेट्स ने ट्रंप इंतजामिया से इसराइल के जौहरी हथियारों पर मौक़िफ़ वाज़ेह करने का मुतालबा कर दिया है। डेमोक्रेट्स के 30 अराकीन ने वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को लिखे ख़त में कहा कि इसराइल के जौहरी हथियारों पर जारी खामोशी और अबहाम दूर किया जाए। इसराइल के साथ अस्करी ताल्लुकात और जौहरी हथियारों पर खामोशी गैर शफाफ पॉलिसी है। ख़त में मुतालबा किया गया कि जौहरी ताउन और किसी भी जगह मुमकिन जंगी खतरे से मुतालिक मुकम्मल मालूमात दी जानी चाहिए। मौजूदा इंतजामिया ने जौहरी तवाज़ुन और जंगी मालूमात फराहम नहीं की।
वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है, माली नज़्म ज़ब्त और इस्तेहकाम हमारी अवलीन तरजीहात में शामिल है। आलमी इदारों के ताउन से मालियाती निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। इस्लामाबाद में कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट फंड की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हमारा फोकस करंट अकाउंट पर है। मईशत की बेहतरी के लिए कैपिटल मार्केट का इस्तेहकाम ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मुस्तहकम होने के साथ मईशत की बेहतरी के लिए अमली इकदाम जारी हैं। मुल्क की मुआशी तरक्की में निजी शोबे की शमूलियत भी हमारी अवलीन तरजीह है। सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि खित्ते में कशीदगी ख़त्म कराने के लिए हमारी क़यादत की तरफ से सिफारती काविशें जारी हैं। वज़ीर तिजारत जाम कमाल और अमरीकी नायब नुमाइंदा तिजारत रिक स्विट्ज़र की वर्चुअल मुलाकात हुई। मुलाकात में दो तरफ़ा तिजारत के फ़रोग़ और मुतवाज़न तिजारती मुआहिदे समेत पाकिस्तान अमरीका तिजारती ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। अमरीकी नुमाइंदा तिजारत ने खत्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहते हुए आलमी तिजारत के लिए पाकिस्तान के किरदार को अहम करार दिया। मुलाकात में इस बात पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया कि बाहमी फ़ायदेमंद और मुस्तक़बिल पर मबनी तिजारती फ्रेमवर्क ज़रूरी है। इस मौके पर वफाकी वज़ीर जाम कमाल ने कहा, पाकिस्तान ज़िम्मेदार आलमी किरदार और अमन के फ़रोग़ के लिए पुराज़िम है। पाकिस्तान अमरीका के साथ तिजारत बढ़ाने और नई शोबों में ताउन का ख्वाह है। अमरीकी हुकाम ने कहा कि पाकिस्तान के साथ तिजारत मज़ीद मजबूत बनाने के वसीम इम्कानात मौजूद हैं। बाहमी बुनियादों पर तिजारती फ्रेमवर्क से माशी ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। उन्होंने कहा कि तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात जारी हैं, चंद उमूर पर पेशरफ्त बाकी है। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने अमरीकी वफ़द को पाकिस्तान के दौरे की दावत देते हुए मुस्बत रवाबित जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में सिमली डैम का दौरा किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला को सिमली डैम की तौसी के बारे में ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि सिमली डैम से इस्लामाबाद को 40% पानी फराहम किया जाता है। मोहसिन नकवी ने सिमली डैम की तौसी के लिए काबिल अमल प्लान भी जल्द तलब कर लिया। वज़ीर दाखिला का कहना था कि डैम की तौसी से पानी की वाफर फराहमी यकीनी बनाई जा सकेगी। वज़ीर दाखिला ने डैम के अतराफ के इलाके का जायज़ा लिया और इलाके में तफरीही सरगर्मियों के फ़रोग़ और डेवलपमेंट का प्लान भी तलब कर लिया। वज़ीर दाखिला का कहना था कि सिमली डैम से मुत्तसिल इलाके में तफरीही सरगर्मियों के बेपनाह मौके मौजूद हैं। वाटर स्पोर्ट्स और दीगर तफरीही सरगर्मियों के फ़रोग़ से इलाके में डेवलपमेंट होगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि मार्के हक कौमी इत्तेहाद, इज्तिमाई अज़्म और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ के गैर मुतज़लज़ल अहद का अक्कास है। ISPR के मुताबिक GHQ रावलपिंडी में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फील्ड मार्शल का कहना था कि मार्का हक अवाम, हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान गैर मुतज़लज़ल हम आहंगी की अलामत है, जो तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के मद्दे मुकाबल बयान मरसूस की मानद यकजा हैं। उन्होंने कहा, कौमी सतह पर मार्का हक की याद मनाना भारतीय मुतकब्बिराना सियासी सोच के लिए वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद, मजबूत और हर लिहाज से मुकम्मल तैयार है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका ने ऑपरेशन गज़ब लिल हक के जरिए दहशतगर्दों और उनके मुआविन इंफ्रास्ट्रक्चर की मुकम्मल तबाही का अहाता किया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने इस आज़म का इरादा किया कि दहशतगर्द नेटवर्क के मुकम्मल खात्मे, उनके मुआविन इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही और पाकिस्तान की सरजमीन को किसी भी शरअंगेज़ कार्रवाई से महफूज रखने के लिए मौजूदा ऑप्शनल रफ्तार बरकरार रखी जाएगी। फोरम ने अफगान तालिबान रिजीम की गैर मंतकी और गुमराहकुन पॉलिसी के तहत खवारिज और दीगर दहशतगर्द तंजीमों को महफूज पनागाहें फराहम करने की शदीद मजम्मत की। फोरम ने कहा कि अफगान तालिबान रिजीम की दहशतगर्दी की हिमायत अफगान अवाम के मफादात के बरक्स है। उन्होंने कहा, ये रिजीम अब अफगान अवाम के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। शुरका कॉन्फ्रेंस का कहना था कि अफगान तालिबान रिजीम ने हालिया दिनों में एक मुसलसल प्रोपेगेंडा के तहत पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के अंदर शहरियों को निशाना बनाने का झूठा इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा, ये गुमराहकुन बयानिया अफगान तालिबान रिजीम की एक मुनज़्ज़म डिस इन्फॉर्मेशन मुहिम का हिस्सा है, जिसका मकसद अपनी अंदरूनी नाकामियों से तवज्जो हटाना और खुद को मजलूम पेश करने का ड्रामा रचाना है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने अफगान तालिबान रिजीम के पाकिस्तान पर लगाए गए इस बेबुनियाद इल्ज़ाम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। फोरम ने वाज़ेह किया कि हमारी दिफाई कार्रवाइयाँ सिर्फ दरअंदाजों, दहशतगर्दों के ठिकानों और मुआविन इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ दुरुस्त अहदाफ पर मबनी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुल्क भर में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर जारी इंसदादे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में कमांडर्स और फॉर्मेशंस के आज़म, मुस्तादी और कामयाबी को सराहा। मार्के हक की मुनासबत से तकरीब का प्रोमो जारी, तू याद रखी के उन्वान से जारी प्रोमो में मार्के हक की कामयाबी को उजागर करके कौमी जज्बे को गरमाया गया है। पलवला अंगेज प्रोमो 10 मई को पाकिस्तान मोनूमेंट पर होने वाली कौमी बयान मरसूस तकरीब के तनाजुर में जारी किया गया।
Pakistan responded with a relentless, a massive barrage of missiles and rockets. 7 brand beautiful planes were shot down. भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते। हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि मार्का हक पाकिस्तान की फैसला कुन अस्करी बरतरी और कौमी इत्तेहाद का नाकाबिले तरदीद सबूत है। ये कामयाबी भारत को वाज़ेह पैगाम देती है कि पाकिस्तान अपने दिफा में मुकम्मल तौर पर मजबूत और मुत्तहिद है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मार्का हक सिर्फ एक वाक़या नहीं बल्कि एक मुस्तकिल लकीर है जिसके बाद किसी भी मुहिम जोई का जवाब पहले से ज़्यादा सख्त और फैसला कुन होगा। उन्होंने मजीद कहा कि बर्री, बहरी और फ़ज़ाई अफवाज की सलाहियत दुश्मन के अंदाज़ों से कहीं ज़्यादा मौसर और मरबूत है। उन्होंने जोर दिया कि पूरी कौम बुनियान मरसूस की तरह अपनी अफवाज के साथ खड़ी है, जबकि नौजवानों का शऊर और एतमाद पाकिस्तान की असल ताकत है। नौजवान क़यादत का कहना है कि ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी अल्लाह की मदद का वाज़ेह सबूत है जिसने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। उनके मुताबिक पाकिस्तान को ना हकीकत में और ना ही किसी के ख्वाब में शिकस्त दी जा सकती है। पाकिस्तानी पुरअज़्म और पुरएतमाद नौजवान क़यादत का कहना था कि ऑपरेशन बुनियान मरसूस के मौके पर अल्लाह की मदद को देखा, महसूस किया और उसकी कामयाबी ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। मार्का हक हमारे लिए एक ऐसी दास्तान है जो हम अपनी आने वाली नस्लों को सुनाएंगे। पाकिस्तानी अफवाज ने दुश्मन की जारियत का भरपूर जवाब दिया जिस पर वो सफ़ेद झंडा लहराने पर मजबूर हो गया। नाज़रीन, कौमी अज़्म, जुर्रत और तारीख साथ जिद्दोजहद की अक्कासी करती किताब मार्के हक की पुरवकार तकरीब रनुमाई मुनक़िद हुई। इस अहम वाक़े पर इल्म, अदब, दिफा और दानिश के शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली मुमताज़ शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। मुकर्ररीन ने किताब को हक़ व सदाकत की जिद्दोजहद का मौसर बयान करार देते हुए इसे नई नस्ल के लिए मशले राह कहा। तफसील जानते हैं अनीता अजीज से। अजीम फतह, कौमी अज़म और जुरात की शानदार दास्तान किताब मार्का हक की पुरवकार तकरीब रोनुमाई हुई जिसमें मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात, दानिश्वरों, अस्करी माहिरीन और अदब दोस्त अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुसन्निफ कर्नल रिटायर इशफाक हुसैन ने कहा कि किताब का बुनियादी मौजू पाकिस्तानी कौम और अफवाज पाकिस्तान का दुश्मन की जारियत के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ा होना है। पाक फौज अकेले भी पूरी कौम फौज के साथ थी और अल्हम्दुलिल्लाह इस सब सारे इत्तेहाद का भी कहते ये निकला कि पाक फौज सुरखरुख हुई और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी ऐसे ही होगा। मुकर्ररीन के मुताबिक ये किताब न सिर्फ माजी को महफूज करती है बल्कि नई नस्ल के लिए फिक्री रहनुमाई और कौमी शऊर की बेदारी का जरिया भी है। तकरीब के अख्तिताम पर इस अज़म का इजहार किया गया कि ऐसी तसानी कौमी शऊर और हुब्बुल वतनी के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करती है। अनीता अजीज़, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़। भारत ने अपनी बुज़दिलाना तारीख दोहराते हुए आज से 1 साल कबल रात की तारीकी में पाकिस्तान में 6 मसाजिद, मदारिस और शहरी मकामात को निशाना बनाया। पाक फ़ज़ाइया समेत अफ़वाज पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करके भारत का जंगी जुनून और गुरूर नीस्तो नाबूद कर दिया। रिपोर्ट करेंगे ताहिर जाफरी। भारत ने अपनी बुज़दिली की रिवायत बरकरार रखते हुए पहलगाम फॉल्स फ्लैग वाक़या को जवाज बनाकर 6 और 7 मई 2025 को आज़ाद जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान में 6 मसाजिद और शहरी मकामात को निशाना बनाया। इन हमलों में मुतअद्दिद शहरी शहीद भी हुए। भारत ने मुरीदके में गवर्नमेंट एजुकेशनल एंड हेल्थ कॉम्प्लेक्स पर भी 4 मिसाइल दागे जिसके नतीजे में एक मस्जिद शहीद हुई और 3 मकानों को शदीद नुकसान पहुंचा। भारत की जानिब से ये हमले शहरी आबादी पर किए गए जहाँ मसाजिद, स्कूल, मदारिस, अस्पताल और सैकड़ों घर मौजूद थे। भारत के लाहौर और बहावलपुर समेत शहरी आबादी पर हमले आलमी कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी थे। जारियत के बहाने में उन्होंने मसाजिद और मदरसों पे और बच्चों पे जहाँ बच्चे पढ़ते हैं और उसको रात को या सुबह नमाज के टाइम ये सारी चीज़ें देखते हुए पाकिस्तान पे हमला किया। इंडिया ने सरप्राइज करने की कोशिश की, पाकिस्तान एयरफोर्स ने जवाब दिया और तारीख नई हो गई कि उसके बाद मार्का हक में 4 दिन जंग चली। दुनिया ने यह समझ लिया कि पाकिस्तान का कद बढ़ गया, जियोपॉलिटिकल, और इंडिया का नीचे आ गया। पाक फिजाइया और फौज ने फौरी जवाबी कार्रवाई करते हुए दुश्मन के राफेल लड़ाका तैयारों समेत मुतअद्दिद जहाज और मुसल्लह ड्रोन मार गिराए, जबकि LOC पर भारतीय फौज के एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर समेत दर्जनों चेक पोस्टों को तबाह किया गया। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई खालिस्तान दिफाई मकासद के लिए थी जिसमें भारतीय शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया गया। आज भी पूरी कौम सीसा पिलाई दीवार बनकर अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है और किसी भी मुमकिन भारतीय जारियत की ख्वाहिश और हर धर्मी का जवाब देने के लिए हमावक्त तैयार है। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर।
मार्के हक की कामयाबी का जश्न गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर बॉयज़ मुजफ्फराबाद के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तानी अवाम और बहादुर मुसल्लह अफवाद से इज़हार तशक्कुर के लिए एक पुरवकार तकरीब और रैली का इन्नकाद किया गया। तफसील से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे अदील अहमद खान। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मुजफ्फराबाद में मार्का हक की शानदार कामयाबी की याद में निकाली गई रैली में असातिज़ा, तलबा और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत करके अफवाज पाकिस्तान से अपनी वालिहाना मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया। रैली के शुराका ने बैनर्स, प्ले कार्ड्स और कौमी परचम थाम रखे थे और वो पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के हक में भरपूर नारेबाजी कर रहे थे। उसी की वजह से अल्लाह ताला ने हमें, हमारी मुल्क को, हमारी कौम को वो इज्जत दी कि आज हम जो हैं पूरी इस्लामी दुनिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक पंचायत का रोल अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन गया और इसी की बुनियाद पर आज आप देखते हैं पाकिस्तान, आज दुनिया के फैसले आज पाकिस्तान में हो रहे हैं। हम पर पाकिस्तान की अगर साया ना होता तो सबसे पहले हम इधर पिसे जाते। ये पाकिस्तान अफवाज का सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ और सबसे ज़्यादा उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस मौके पर मुकर्रीन ने अफवाज पाकिस्तान को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया, जिन्होंने मुल्क का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाया और दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। मुकर्रीन ने बुनियानुल मरसूस की कामयाबी को कौमी इत्तेहाद, यकजहती और हुब्बुल वतनी का रोशन बाब करार दिया। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जनूबी अजला में शदीद गर्म रहा। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत तुरबत 45, लसबेला मिठी 44, छोड़ 43, मीरपुर खास पे 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किए गए अब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। नाज़रीन, अब आपको आगाह करते हैं आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर कराची रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 169 रिकॉर्ड किया गया। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान का शहर लाहौर रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 156 रिकॉर्ड किया गया। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली तीसरे नंबर पर रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 142 रिकॉर्ड किया गया। बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका चौथे नंबर पर रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 134 रिकॉर्ड किया गया। पांचवें नंबर पर सऊदी अरब का दारुल हुकूमत रियाद रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 124 रिकॉर्ड किया गया। जबकि छठे और आखिरी नंबर पर कतर का दारुल हुकूमत दोहा रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 120 रिकॉर्ड किया गया। मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की, अब आपको वापस लिए चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। नाज़रीन, कुछ स्टॉक मार्केट की बात कर लेते हैं। आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान देखने में आ रहा है। हमारे नुमाइंदे ज़मीर अब्बास इस वक्त कराची से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। ज़मीर अब्बास, बताइएगा आज PSX की सूरत हाल क्या है और तेज़ी की अहम वजूहात क्या है? जी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान देखने में आ रहा है। सुबह से लेके अब तक स्टॉक मार्केट में 3,385 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया जा चुका है, जिसके बाद मार्केट 1,67,245 पर ट्रेड कर रही है। मार्केट में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, जिसका हमने देखा कि 2024 और 2025 में भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आलमी सतह पर अपना लोहा मनवाने में कामयाब हुई, जिसकी तारीफ आलमी मालियाती जरीदों ने भी की थी। अभी भी इसमें काफ़ी पोटेंशियल मौजूद है, ताहम जो मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस चल रहे हैं, खास करके अमेरिका ईरान का जो तनाज़ा है, जिसकी वजह से एशियाई ममालिक पे शदीद दबाव मौजूद है। हम देख रहे हैं कि जैसे ये तनाज़ा बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से पेट्रोल की प्राइसेस भी बढ़ती जा रही हैं और उस वजह से स्टॉक मार्केट्स वैसे जो है वो रिएक्ट कर रही हैं। अगर हम देखें आदाद शुमार पे, तो PSX की कारकर्दगी की वजह से अप्रैल के महीने में तकरीबन 24,150 नए इन्वेस्टर्स जो है वो रजिस्टर हुए। इसके साथ PSX की जो मजमूई तादाद हुई इन्वेस्टर्स की, वो 5,45,000 का जो लेवल है वो क्रॉस कर चुकी है। ये टेस्टिमेंट है कि इस PSX में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है और जैसे ही अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मामलात हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे, तो उसके बाद हम देखेंगे कि दोबारा जो PSX का जो तरक्की का सफ़र था वो जहाँ रुका था वो वहीं से दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हुकूमत की जो पॉलिसीज़ है
वो काफ़ी मुस्बत हैं, और उसकी वजह से मुल्क के मौशी अशारिया जो हैं काफ़ी मुस्तहकम भी हुए हैं और इस्तेहकाम की जानिब गामजन भी हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स काफ़ी पुरुमीद हैं कि जैसे ही तनाज़ा हल होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इंजेक्ट करेंगे। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत की पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि जो मुल्क की मईशत को मज़ीद इस्तेहकाम की तरफ ले जाने में मुफीद और कारआमद साबित हो रही हैं, क्योंकि हमने उनके रिजल्ट्स देखे हैं। पाकिस्तान की सालसी की कोशिशें जो वो जारी हैं, और तमाम जो आलमी सतह पर जो ममालिक हैं वो पाकिस्तान की पजीराई करें इस हवाले से कि जो ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी का जो पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है, और उम्मीद की जा रही है कि तनाज़ा जल्द हल हो जाएगा, जिसके बाद मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम का जो सफ़र जहाँ रुका था वहीं से दोबारा शुरू हो जाएगा। जी, ज़मीर अब्बास हमें आगाह कर रहे थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सारेट का इजलास 7 मई को तलब करने की मंजूरी दे दी है। ऐवान सदर से जारी बयान के मुताबिक सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास 11 मई को तलब करने की भी मंजूरी दी। वफाकी वज़ीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीली असर हाजिर का सबसे बड़ा चैलेंज है। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए इज्तिमाई इक़दाम दरकार हैं। इस्लामाबाद में ब्रीथ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि पाकिस्तान का शुमार मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक में होता है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली की वजह से बेपनाह नुकसान उठा चुका है। उन्होंने कहा कि सैलाबों ने जानी नुकसान के साथ साथ लोगों के लिए माशी मसाइल भी पैदा किए। फ़ज़ाई आलूदगी शहरियों खुसूसन बच्चों की सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है। 10 बड़े ममालिक दुनिया के 70% कार्बन अखराज के जिम्मेदार हैं, ताहम सैलाब और तबाही का बोझ उन इलाकों पर है जो खुद आलूदगी नहीं फैलाते। उन्होंने कहा मौसमियाती बहरान में जिम्मेदार और मुतासरा ममालिक बराबर नहीं हैं। माहौलियाती नुकसानात का इजाला आलमी जिम्मेदारी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर शहीद रहमान ने कहा कि मौसमियाती बहरान इंसानी बहरान में तब्दील हो रहा है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर तबके को अपना किरदार अदा करना होगा। इस्लामाबाद में डॉन ब्रीथ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा कि कॉन्फ्रेंस ने पॉलिसी साजों, माहिरीन और स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया। माहौलियाती आगाही में मीडिया का किरदार अहम है। उन्होंने कहा कि तरक्की पजीर ममालिक माहौलियाती तब्दीली से बढ़ते चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। हुकूमत, अवाम और इदारों को मुश्तरका किरदार अदा करना है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की बदौलत भक्कर में बंजर रकबा जदीद ज़रई और बरामदी मरकज में तब्दील हो गया है। ज़रई शोबे में जिद्दत, बरामदात में वुसअत और खुद कफालत की जानिब मौसर अंदाज में पेशरफ जारी है। CEO पेंट्रा लिमिटेड फुरकान अली अख्तर ने मुताबिक भक्कर में 1800 एकड़ का जदीद ज़रई फार्म सिर्फ 60 दिन में तैयार करके नई मिसाल कायम की गई। फार्म पर 13 सेंटर पेवर्ट सिस्टम्स और 2.4 मेगावाट हाइब्रिड सोलर सिस्टम के जरिए आबपाशी यकीनी बनाई जा रही है। जबकि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पेंट्रा फार्म्स फारूक सईद के मुताबिक 4 माह कबल ये ज़मीन 20 से 50 फुट बुलंद रेत के टीलों पर मुश्तमिल थी, जिसे कलील मुद्दत में काबिल काश्त बनाया गया। कुल 1800 एकड़ में से 1300 एकड़ ज़ेरे काश्त है, जहां गंदुम और रोड्स ग्रास उगाई जा रही है, जबकि रोड्स ग्रास बरामद भी की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से अराकीन सूबाई असम्बली ने मुलाकात की और सूबे भर में जारी तरक्याती मनसूबों को सराहा। अराकीन असम्बली ने सड़कों और गलियों की तामीर और तोसी, ड्रेनेज और साफ पानी की फ्राहमी और मिसाली गाँव प्रोजेक्ट्स को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि पहली मरतबा शहरियों की तरह देहात में भी सुथरा पंजाब के तहत सफाई का मरबूत निज़ाम मुतारिफ कराया गया है। मरियम नवाज ने कहा पंजाब की तरक्की का सुनहरा दौर शुरू हो चुका है। 3000 से ज़ायद मराकज़ सेहत स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ क्लिनिक्स में बदलने से हेल्थ कल्चर यकसर तब्दील हो चुका है। उन्होंने कहा पंजाब का पहला सरकारी कैंसर हॉस्पिटल और नवाज शरीफ मेडिकल सिटी तकमील के आखिरी मराहिल में है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि हर जिले में केथ लैब प्रोजेक्ट और स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर के क़याम से अमराज़ दिल और फॉलिज के मरीजों को फौरी रिलीफ मुहैया किया जा रहा है। उन्होंने कहा बेघर, बेरोजगार शहरियों और बेज़मीन काश्तकारों के लिए प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं और इलेक्ट्रॉनिक बसेस के जरिए देहात के अवाम को भी आरामदेह और मुफ्त सफरी सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। अमरीका में तैनात पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने सिलेक्ट USA प्रोग्राम के तहत अमरीका का दौरा करने वाली मारूफ पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात के एजाज़ में इशाइया दिया। इस मौके पर पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के तारीखी ताल्लुकात अब एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं, जो इक्तसादी रवाबित और तवील मुद्दती माशी शराकतदारी पर मबनी होंगे। उन्होंने दोनों ममालिक की कारोबारी बरादरी पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत और माशी मौक़े से भरपूर फ़ायदा उठाएँ। इस मौके पर अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी पाल किपर ने खिताब करते हुए कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात हर दौर में अहम रहे हैं। कराची में अमरीकी कौंसल जनरल चार्ल्स गुडमैन का कहना था कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े और दो तरफ़ा तिजारत बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने बेज़मीन और कम वसाइल रखने वाले अफराद के लिए एक बड़ा ज़रई मनसूबा शुरू कर दिया है। अपना खेत अपना रोजगार स्कीम के तहत शहरियों को इंतहाई कम किराए पर ज़रई ज़मीन फराहम की जा रही है, ताकि न सिर्फ ज़रई पैदावार में इजाफा हो बल्कि देही मईशत को भी सहारा दिया जा सके। इस हवाले से ओकाड़ा में दरखास्तों की वसूली का अमल शुरू हो चुका है। तफसील जानते हैं मोहम्मद अशरफ से।
पंजाब हुकूमत ने ज़राई शोबे में खुद रोज़गार के फ़रोग़ के लिए अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम का आगाज़ कर दिया है। इस मनसूबे के तहत मुस्तहिक़ अफराद को हुकूमत की ज़राई ज़मीन इंतहाई मामूली किराए पर दी जा रही है ताकि नए किसानों को काश्तकारी के मौके फराहम किए जाएँ। अहल दरख्वास्त गुजारों को 1 से 5 एकड़ ज़मीन सिर्फ 100 रुपये फ़ी एकड़ सालाना 10 साला मुद्दत के लिए ज़राई मकासद के लिए किराए पर दी जा रही है। उकाड़ा की तीनों तहसीलों में असिस्टेंट कमिश्नर के दफातर में खुसूसी काउंटर फ़ाल हैं, जहाँ पर आगाही के साथ साथ रजिस्ट्रेशन का अमल भी जारी है। लोग आके अपने एसी ऑफिस के इस काउंटर पे अपनी दरख्वास्त दे सकते हैं। साथ साथ उन्हें ये रहनुमाई भी मुहैया की जा रही है कि वो घर बैठे पोर्टल के थ्रू भी अपनी एप्लीकेशन को अपलोड कर सकते हैं। दरख्वास्तें पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के ऑनलाइन पोर्टल और मुतलका दफातर के जरिए 18 मई तक वसूल की जा रही हैं। मैंने अप्लाई भी कराया है। अगर हमने ये रकबा मिल जाए है, ज़मीन मिल जाए तो इस पर हम मेहनत भी करांगे, लगन से काम करांगे। हमने काउंटर से मालूमात ली है जो इन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से गाइडलाइन दी हैं और हम इसमें अगर हमें ज़मीन अलाट हो जाती है तो आवाम का और पूरे मुल्क का फ़ायदा होगा। उसमें मरियम नवाज साहबा का बहुत शुक्रिया। कामयाब उम्मीदवारों को ज़राई सरगर्मियों के आगाज़ के लिए 50,000 रुपये फ़ी एकड़ तरक्याती ग्रांट्स भी दी जाएंगी ताकि वो बेहतर अंदाज में काश्तकारी कर सकें। पंजाब हुकूमत की तरफ से शुरू की गई ये स्कीम देही मैशत, ज़राई तरक्की और ख़ुद रोज़गार के फ़रोग़ की जानिब एक अहम कदम करार दी जा रही है। मोहम्मद अशरफ, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, औकाड़ा। बहावलनगर में मार्का हक में शानदार कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर मार्का हक और अशरफ फतह मुबीन के उन्वान से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र, सियासी और मजहबी रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं राना फैसल रहमान। मार्का हक में कामयाबी को 1 साल मुकम्मल होने पर बहावलनगर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र और सियासी मजहबी रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की। उन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान की कामयाब हिकमत अमली ने भारत के गरूर को खाक में मिला दिया, जबकि कौमी इत्तेहाद ही मुल्क की असल ताकत है। बुनियाद मरसूस के उन्वान से फतेह मुबीन के हवाले से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस यहाँ रखी गई और तमाम तर तबक़ाए ज़िंदगी के लोगों ने इसमें शमूलियत की। पाकिस्तान में ये पैगाम हम आम कर रहे हैं कि हम इंशाअल्लाह कल अपनी फ़ौज के साथ है, आज भी अपनी फ़ौज के साथ है। अपना तन मन धन कुर्बान करने के लिए इस मुल्क के लिए हम हर वक्त तैयार हैं इंशाअल्लाह। मुकर्रीन का कहना था कि बुनियानुल मरसूस बनकर ही रहना पाकिस्तान की सलामती की जमानत है। तमाम मुकर्रीन ने इस अज़म का इरादा किया कि पूरी कौम बुनियानुल मरसूस बनकर पाकिस्तान के इस्तेहकाम, सलामती और तरक्की के लिए सीसा पिलाई दीवार की मानिंद खड़ी रहेगी। तकरीब के इख्तिताम पर मार्का हक में शहादत का रुतबा पाने वालों के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की गई। राना फैसल रहमान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर। कमालिया में हिम्मत और हौसले की एक ऐसी मिसाल जिसने सबको मुतासिर कर दिया है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के तालिब इल्म ने जिस्मानी माजूरी के बावजूद पैरों से इम्तिहान देकर नई तारीख रकम कर दी। तफसील से आगाह करेंगे मोहम्मद अब्दुल्ला। मालिया के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, जहां एक सेकंड ईयर के बाहिम्मत तालिब इल्म अपनी मजूरी को शिकस्त देकर तालीम का सफ़र जारी रखे हुए है। हाथों से लिखने से कासिर ये तालिब इल्म अपने पैरों की मदद से न सिर्फ लिखना सीख चुका है बल्कि इन्हीं के ज़रिए इम्तहानात भी दे रहा है। इम्तहानी हाल में इसकी मेहनत, यकसुई और अज़म देखकर असातिज़ा और दीगर तलबा बेहद मुतासिर हैं। मेरा नाम सैयद रेहान अली है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कमालिया में सेकंड ईयर CIT में स्टडी कर रहा हूँ। मैं दोनों हाथों से मजदूर हूँ, हाथों के साथ मैं लिख नहीं सकता, तो मैंने शुरू से कोशिश करने स्टार्ट की। पाँव से लिखना मैंने सीखा, पाँव के साथ लिख के मैं आज अपनी कामयाबी हासिल करने के बिल्कुल करीब हूँ। मेरे वालिदैन और मेरा ये ख्वाब था कि मैं कुछ हासिल करूँ। सैयद रेहान अली हमारे कॉलेज का फ़ख्र है और ये बच्चा अपने लिए और दूसरे बच्चों के लिए एक भरपूर मोटिवेशन है कि इतनी आपकी माजूरी के बावजूद एक बच्चा पैरों से लिखता है और हम कॉलेज में इसको भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं और हर मुमकिन मदद इसकी कर रहे हैं। ये तालिब इल्म इस हकीकत की ज़िंदा मिसाल है कि अगर अज़्म मजबूत हो तो कोई भी माजूरी इंसान की कामयाबी की राह में रुकावट नहीं बन सकती। मोहम्मद अब्दुल्ला, नुमाइंदा PTV न्यूज़, कमालिया। अजीम ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीम यार खान में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इश्तराक से एक तालीमी नुमाइश का इनेकाद हुआ, जिसमें मुकामी स्कूल्स और कॉलेजेस के मुख्तलिफ ममालिक की यूनिवर्सिटीज़ के नुमाइंदगान ने शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे इशफाक अहमद।
ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीम खान में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इश्तराक से एजुकेशनल एक्सपो का इनेकाद हुआ, जिसमें 18 मकामी स्कूलों कॉलेजेस जबकि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में वाक़या 10 से ज़ायद जामियात के नुमाइंदों ने शिरकत की और स्टॉल्स लगाए। तकरीब का मकसद तुलबा को कौमियों बैनुल-अक़वामी जामियात में तालीम हासिल करने के मौक़े, स्कॉलरशिप से आगाही और कैरियर के हवाले से मालूमात फराहम करना था। डिफरेंट तरीके से जो बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और लेटर जब बच्चे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के थ्रू बाहर जाएंगे तो ये सारी स्किल्स उनको हेल्प करेंगे। जो बच्चा हमारा स्टूडेंट है उसको अंडर वन रूफ तमाम अपॉर्चुनिटीज उसके कैरियर से रिलेटेड जो है वो मिल सके। ख्वाजा फरीद के स्टूडेंट हो, यहाँ पे स्कॉलरशिप के रिलेटेड बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। बच्चों के पेरेंट्स को आइडिया हो जाता है कि उन्होंने अपना जो करियर है वो किस तरह से आगे परस्यू करना है और क्लैरिटी जो है वो बच्चों को आ जाती है। तो ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि इस खित्ते के बच्चों को बेहतरीन तालीम के जो मौके हैं वो मुयस्सर आ सकें। नुमाइश में तुलबा, असातिज़ा और माहिरीन तालीम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मैं शर्जील मीर और मेरे साथ मेरे जनरल सेक्रेटरी मार्काए हक शहदा फोरम के जनरल सेक्रेटरी यासिर हज, आज हम पहली यादगारी जो हमारी पहली यादगारी वो बरसी है, उसके मौके पर आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें हम पूरे के पूरे अपने जो शहदा हैं, जिसमें मासूम बच्चे हैं, उनकी लाजवाल कुर्बानियों को याद करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने उनको देखना है कि उनके साथ कितनी ज्यादतियां की। उन्होंने मुल्क के दिफा के लिए उन्होंने इतनी बड़ी अपनी जान की कुर्बानियां पेश की और हम उनको खराजे अकीदत पेश करते हैं। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुझे अफसोस भी है, मुझे अफसोस के साथ फख्र भी है, गरूर भी है। हम फाते हैं। मैं आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस फाते कौम की हैसियत से कर रहा हूं। वो फाते कौम के जिसने ये देखा कि उस चांकिया के नालायक शागिर्द ने, मोदी ने, वो 6 मई की रात को वो जहरियत, वो दहशत गर्दी की, उसने मासूम शहरियों पे हमला किया, उसने मसाजिद को तबाह किया, उसने मसाजिद पे हमला किया जिसमें मासूम शहरी हमारे शहीद किए गए, मासूम बच्चे शहीद किए गए, शहरी आबादी को तबाह किया गया। ओ चांकिया के नालायक शागिर्द, तुम्हें तो जंग लड़नी भी नहीं आती, तुम्हें तो जंग लड़ने के इखलाकियात ही नहीं है। तू तो भूल गया अपने जंगी जनून में, ये भूल गया कि जंग कैसे लड़ी जाती है। लेकिन हमने बहुत, पूरी कौम ने सब्र का मुजाहरा किया। वो 3 दिन पूरी कौम ने देखा कि ज्यादती हो रही थी मासूम शहरियों से, आबादियों पे, मसाजिद पे। तू अपनी जहरियत कर रहा था, पूरी कौम सब्र पे खड़ी थी और आखिर 3 दिन तुमने मुस्तकिल हमर किया, पूरी कौम ने सब्र किया। फिर हमारी पाक फौज और कौम इस आयत के साथ खड़ी हुई, इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युकातिलूना फी सबीलिही सफ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। हाँ, कहा सफ बनाई, कौम इकट्ठी थी, कौम ने सब्र किया हुआ था, हमने सफ बनाई और सफ बना के कहा बुनियानुम मरसूस कि अब हम सीसा पिलाई दीवार बन गए हैं। और हमने 4 घंटे के अंदर पूरी पाक अफवाज ने तेरी सारी फौजी तंसीबात, तेरे सारे तैयारे, तेरे सारा मिसाइल सिस्टम, इसे कहते हैं इखलाकियात, के सुबह फजर के टाइम तो रात के अंधेरे पे हमला कर रहा है, हम सुबह फजर के टाइम रोशनी में हमला कर रहे हैं और फौजी तंसीबात पे तुम्हारी हमला कर रहे हैं। तुम्हारी 600 अरब डॉलर की इकोनॉमी को हमने जेर करके रखा, सबने देखा। अल्लाह ने फिर क्या कुरान में, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवातन,
इंदा रब्बिहिम युर्ज़क़ून। जो शहदा हैं उनको मुर्दा मत कहो, वो जिंदा हैं, बल्कि रिस्क भी खा रहे हैं। लेकिन हमने अपनी जिम्मेदारी को भी महसूस करना था। अल्लाह ने यह भी कहा कि खिदमत खल्क करो। हमने अपनी जिम्मेदारी को महफूज किया। इसलिए मैं महसूस किया कि जो कौमें अपने शहदा को भूल जाती हैं वो तारीकी में डूब जाती हैं। हम नहीं भूलेंगे। सारी जिंदगी शहदा के फैमिली के साथ खड़े रहेंगे। हाँ, खड़े रहेंगे। हमने फिर हुकूमत से मुतालबात किए। हमने हुकूमत से कहा कि ये जो जुल्म करके गया मासूम शहरियों पे, इनके इमारात को तबाह करके गया, इनकी फैमिली की कफालत कौन करेगा, इनके घरों की तामीर कौन करेगी, और वो जो इमारात तबाह हुई हैं शहरी इमारात, उनकी तामीर कौन करेगा। हमने कहा कि इनके लिए यादगार बनाएं। हाँ, इनकी यादगार बनाएं, इनकी माली मदद करें, इनकी फैमिलीज की कफालत करें। हाँ, शुक्रगुजार हैं हम शुक्रगुजार हैं। हमारी गवर्नमेंट ने फैमिलीज की दाद रसी की। हाँ, आज भी पूरा साल हो गया है, उन्होंने, उनके ओहदेदारों ने, उनके नुमाइंदों ने फातिहा खानी भी की। लेकिन हमने उनको उस वक्त ये भी कहा था कि आलमी अदाराए इंसाफ और अक़वाम मुत्तहिदा पे जोर दें। हम तो जंग लड़ेंगे, पूरी आलमी बरादरी को बताएंगे कि शहदा के साथ जुल्म हुआ है। लेकिन हमने उस वक्त कहा था आपने भी इस फोरम पे तवज्जो देनी है, सफारती मामलात को तेज करना है, और आपने आलमी अदारा सेहत को, इंसाफ को आपने बताना है कि हमारे साथ कितना जुल्म हुआ है। और आपने वो बात आज भी हम कहते हैं, आपको दोबारा कह रहे हैं कि आपको आलमी अदारे इंसाफ और अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी अदारों पे जोर डालना पड़ेगा। हाँ, आप जोर डालेंगे। मैं ये पूछता हूँ आपसे, आलमी अदारों से पूछता हूँ, उस 6 साल के बच्चे मोहम्मद उमर का क्या कसूर था? मासूम था शायद। हाँ, उस 4 साल के बच्चे मोहम्मद एवान का क्या कसूर था? वो हवा बीबी जो 1.5 साल की थी, सिर्फ बच्ची, उस मासूम बच्ची का क्या कसूर था? हाँ, आप बताएं। वो 4 साल का बच्चा था, एक बच्ची थी, एक उर्वा जुबैर, उसका क्या कसूर था? तू ये जंगी जनून था, तू तो जाहिरियत करने आया था, तू जुल्म करने आया था, जो तेरा पुराना वतीरा है, तू मोदी और तू बहारत। और लेकिन आप लोगों ने देखा कि उसने आज भी जुल्म उसका जारी है। हाँ, वो आज भी मासूम बच्चों को मारना चाह रहा है, वो मारना चाह रहा है। हाँ, हम अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन के पास हमने मुरासला भी पेश किया। हम उनके इंतजार के भी मुंतज़िर हैं। पूरे जनेवा कन्वेंशन की जितनी भी शिकें थी इंसानी हकूक़ की, चाहे पामाली हो, इंसानी आबादी पे हमले करने हो, इंसानी हकूक़ को जितना अमारात को आपने हमला करना हो, तमाम वायलेशन इसने की। कोई पूछ नहीं रहा था, इसने की। इसने 1949 जनेवा कन्वेंशन हुआ, वहां पे आर्टिकल नंबर 27 था कि इंसानी हकूक़ की पामाली, और 32 और 33 आर्टिकल था कि हाँ, इज्तिमाई सजाएं मत दो। इसने पूरी तरह खिलाफ वर्जी की, बल्कि एडमिट किया इसने, इसके लीडरों ने वहां पे एडमिट किया कि हाँ, हमने इंसानी शहरियों पे हमला किया है। इसने वहां पे एडमिट कर रहा है वहां पे। फिर 51 शिक नंबर 51 1977 में दोबारा जनेवा कन्वेंशन में उन्होंने शिक नंबर 51 में कहा कि शहरी आबादी पे हमला नहीं करना। तूने शहरी आबादी पे हमला किया, पूरी तरह मासूम बच्चों को तूने मारा, पूरी तरह तूने बेवाएं की औरतें, तूने पूरी तरह घर उजाड़े, तूने पूरी तरह हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करके रख दिया। तेरा जंगी जुनून इतना था। फिर 52 आर्टिकल कहता है जिनेवा कन्वेंशन का
کہ آپ نے جو انسانی تنصیبات ہیں، جو انسانی امارات کی تنصیبات ہیں، اس پہ آپ حملہ مت کریں۔ تو نے کا مساجد پہ حملہ کیا، شہریوں پہ حملہ کیا، ہر جگہ تو نے حملہ کیا اور ٹوٹلی طرح تو نے وائلیشن کی، تو نے پوری طرح وائلیشن کی۔ اور آج میں اپنی قوم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کا جنگی جنون تو ختم نہیں ہو رہا، یہ تو آج بھی جنگی جنون پہ کھڑا ہے۔ یہ کسی بھی وقت، کیونکہ اب تو جنگ ہارا ہوا ہے، اندر سے جانتا ہے کہ میں جنگ ہارا ہوا ہوں، اس کو جنون سوار ہے جاریت کا، اس نے پھر ناجائز کام کرنے ہی کرنے ہیں، سازشیں آج بھی اس کی جاری ہیں۔ تو میں اس کو پیغام دینا چاہتا ہوں پوری قوم کی طرف سے، ہم شہداء کی جنگ ساری زندگی لڑتے رہیں گے، جہاں جہاں جانا پڑا وہاں ہم جائیں گے۔ اور ایک بات بتاؤں کہ تو کرتا رہ جو تو سوچ رہا ہے، آج ہماری قوم پھر صفن پوری طرح صف بنا کے اپنی پاک افواج کے شانہ بشانہ کھڑی تھی، کھڑی ہے، کھڑی رہے گی، اور بنیان مرصوص سیسا پلائی ہی دیوار بن کے دفاع کرتے رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد، مارکہ حق شہداء پائندہ باد۔ اس پریس کانفرنس کو کرنے کا مقصد ان شہداء کو خراج تحسین پیش کرنا ہے جنہوں نے وطن عزیز کی دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ان میں ہمارے بزرگ، بچے، خواتین اور بے گناہ معصوم شہری شامل تھے۔ یہ پریس کانفرنس اعتراف ہے ان شہداء کی بہادری کا جنہوں نے اپنے ملک میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور ان کی یہ قربانیاں اس فورم کے تھرو ہم آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ مارکہ حق شہداء فاؤنڈیشن کے قیام کا مقصد آپریشن سندور کے نام پہ کی گئی بھارتی جارحیت سے متاثرہ افراد کی مدد کرنا تھا۔ اسی سلسلے میں جب یہ انڈیا نے ایک فالس فلیگ آپریشن کیا پچھلے سال، آپریشن سندور، تو سول سوسائٹی نے مل کر ہمارے ساتھ مل کر بھارتی جارحیت سے متاثرہ زخمی اور شہداء کی کفایت کا مطالبہ کیا، جس میں ان کی طبی سہولیات، مالی مدد اور انفراسٹرکچر کی تعمیر کی۔ اور اس کے علاوہ ہم نے گورنمنٹ سے مطالبہ کیا کہ ان کے قربانیوں کے اعتراف میں یادگار کی تعمیرات کی جائیں، اور یہ بھی ہم نے گورنمنٹ سے مطالبہ کیا، اور ہم بھی اس میں مارکہ حق شہداء فاؤنڈیشن کے بینر تلے اس فاؤنڈیشن کے ساتھ ہم بھی اس میں شامل تھے کہ انڈیا کے ان جنگی جرائم کو عالمی سطح پہ لے کے جایا جائے، عالمی اداروں میں لے کے جایا جائے، بالخصوص اقوام متحدہ اور عالمی عدالت انصاف میں انڈیا کے ان جنگی جرائم کو، اور جو انہوں نے عالمی وائلیشنز کی، جن آرٹیکلز کی، ان کو پریزنٹ کیا جائے عالمی عدالتوں میں۔ تو اس سلسلے میں ہم مشکور ہیں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے کہ انہوں نے متاثرین کی داد رسی کی۔ وفاقی حکومت نے اسلام آباد میں مارکہ حق کی یادگار بنائی، جو بنا رہے ہیں، یہ خوشائن بات ہے۔ یادگار کی تعمیر مارکہ حق کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کرنا ہے۔ زندہ قومیں وہی ہوتی ہیں جو ہمیشہ اپنی بقا پہ جان قربان کرنے والے شہداء کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں، اور جو قومیں اپنی شہداء کے خون کو بھول جاتی ہیں، اپنے شہداء کو بھول جاتی ہیں، ان قوموں کا حال ماضی تاریک رہتا ہے۔ ہم شہداء کے اہل خانہ کے ساتھ کل بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں، اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے، اور ان کی کفالت کے لیے، سپورٹ کے لیے جس لیول پہ بھی ہمیں جانا پڑا ہم جائیں گے۔ ہم پاکستانی عوام سے کہیں گے کہ خطرہ ٹلا نہیں ہے، بھارت ابھی بھی
अपनी साजिशों में मसरूफ़ है। हम पाकिस्तानी मिलकर अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हम अफवाज पाकिस्तान की सलाहियतों पर मुकम्मल यकीन रखते हैं और अज़म का इरादा करते हैं कि शुहदा के वरसे को हमेशा ज़िंदा रखेंगे और वक्त आने पर अफवाज पाकिस्तान के शाना बिशाना खड़े रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, शुहदाए मार्का हक पाइंदाबाद। नाज़रीन, सदर शहदा फोरम शर्जील मीर और सेक्रेटरी जनरल यासिर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सदर शहदा फोरम शर्जील मीर ने कहा कि हमने दिन की रोशनी में दुश्मन को ज़ेर किया और दुश्मन ने रात के अंधेरे में शहरी आदाफ पर हमला किया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना रही। पाकिस्तान ने दुश्मन को जाहिरियत को दंदान शिकन जवाब दिया। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। मार्के हक के 1 साल मुकम्मल होने पर कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं।